السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہ اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے سخت ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4267۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ نیشنل اسپورٹ ڈے کا بانسواڑہ مین اسٹیڈیم میں جوش و خروش کے ساتھ انعقاد۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو دیے کئی مشورے۔ وہ میجر دھیان چند کی تصویر کو پیش کیا خراج عقیدت۔ ٹیآرایس دور حکومت ترقی کا دور، شہر کو خوشنما بنانے و عوام کے لیے روزگار کی مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف ترقیاتی کام شہر میں جاری۔ ٹیآرایس کا اہم کارنامہ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، انہوں نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ مرکزی حکومت کی ظالمانہ قانون ہو یا کورونا وبا کا خوفناک دور، ہر موقع پر عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کا ساتھ دینے والی رکن اسمبلی شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کی یوم پیدائش پر ایک خصوصی رپورٹ۔ نو منتخب ٹی ایچ ای چیئرمین پروفیسر آر لمبادری کی رورل رکن اسمبلی باجی ریڈی گوردھن و پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی سے علیحدہ ملاقات۔ ڈچپلی منڈل میں پھر ایک بار چیتے کا خوف، پہاڑ پر موجود چیتے کا نوجوانوں نے بنایا ویڈیو۔ پھر بھی محکمہ جنگلات کی لاپرواہی پر عوام نے کیا غصے کا اظہار۔ حیدرآباد میں منعقدہ ڈیجیٹل انڈیا 9th کیبل نیٹ ایکسپو کا ہوا آج اختتام۔ اس ایکسپو میں ڈی ٹی پی ایل کی جانب سے متعارف کردہ جدید ٹیکنالوجیز بنی عوام کی توجہ کا مرکز۔ ریاست کے کئی کیبل آپریٹرز نے کیا ایکسپو کا مشاہدہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ٹیآرایس دور حکومت ترقی کا دور، شہر کو خوشنما بنانے و عوام کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے مختلف ترقیاتی کام شہر میں جاری۔ ٹیآرایس کا اہم کارنامہ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، انہوں نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ آج نظام آباد رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے صبح کے اولین ساعتوں میں الیکٹریکل وہیکل کے ذریعے شہر میں جاری سینیٹائزیشن کے کاموں کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کا جائزہ حاصل کیا، جس میں انہوں نے کنٹیشور ریلوے برج کے کاموں کے متعلق تفصیلی جائزہ حاصل کیا۔ ونائک نگر میں جاری ڈیوائیڈرز کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے منی ٹینک بانڈ پر پہنچ کر جاری کاموں کا معائنہ کیا، جہاں پر موجود عوام نے ان کی اس طرح کی خدمات کی ستائش کی اور ان کے ساتھ سیلفیز لی، جس کے بعد انہوں نے احمدی بازار میں زیر تعمیر انٹیگریٹڈ کمرشل کمپلیکس کے تعمیری کاموں کا مکمل طور پر جائزہ حاصل کرتے ہوئے کانٹریکٹر کو ان کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جو ترقیاتی کام گزشتہ 70 سال میں نہیں ہوئے، وہ کام ٹیآرایس دور حکومت کے صرف تقریباً 7 سالوں میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ٹیآرایس حکومت کی جانب سے متعارف کردہ اسکیمات سے عوام کافی بڑے پیمانے پر استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ بلدی کمشنر جتیش پاٹل، اے ای راشد سرینواس و دیگر موجود تھے۔ مرکزی حکومت کی ظالمانہ قانون ہو یا کورونا وبا کا خوفناک دور، ہر موقع پر عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کا ساتھ دینے والی رکن اسمبلی شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کی یوم پیدائش پر ایک خصوصی رپورٹ۔ عائشہ فاطمہ عامر یہ وہ نام ہے جس نے ریاست کی مسلم خواتین کو سی اے اے، این آر سی و طلاق سلسلے کے مسئلے میں جدوجہد کے لیے نئی امید باندھی۔ انہوں نے بنا روک ٹوک انداز میں مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ ان قانون کے خلاف کئی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے خطابات کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کورونا وبا کے دور میں غربا کے علاج و غربا تک غذا کی فراہمی کے لیے اپنی ذاتی طور پر کئی اقدامات کرتے ہوئے گھر گھر ادویات و چھوٹے
بچوں کی غذائی اشیاء پہنچائی اور ہر حساس مسئلے وہ عوام کی شانہ بشانہ آتے ہوئے ہر وقت عوام کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ ان کی صلاحیتوں و کارناموں کے سبب نہ صرف بودھن بلکہ ریاست کی مسلم خواتین کے لیے ایک ریئل ماڈل بن گئی ہے اور آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر کئی غربا مستحقین ان کی عمر درازی و ترقی کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ محکمہ بلدی کی جانب سے انہدامی کارروائی میں عجلت اور صفائی کے کاموں میں غفلت کے سبب شہر کے علاقے احمد پورہ کالونی سے گزرنے والی D54 کینال بارش سے لبریز گندے پانی مکانوں میں داخل۔ مقامی عوام پر محکمہ بلدی کی جانب سے دوہرا مار۔ محکمہ بلدی کی اس مجرمانہ غفلت پر ذمہ دار ملازمین پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے غریب عوام کو امداد فراہم کرنے کے لیے کانگریس قائد ضیاء احمد نے کیا مطالبہ۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے محکمہ بلدیہ کی جانب سے احمد پورہ کالونی سے گزرنے والے نہر کٹے پر کئی غربا کی جانب سے تعمیر کردہ بیت الخلاء و قبضہ جات کو انہدامی کارروائی کافی جنگی خطوط پر کی گئی، لیکن محکمہ بلدیہ اس کی ملبے کی صفائی کرنا بھول گئے، جس کے سبب آج بھی بارش کی وجہ سے نہر بارش کا پانی جمع ہو گیا اور یہاں کے گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے سبب عوام محکمہ بلدیہ کی غفلت کے سبب پھر سے ایک بار مسائل میں مبتلا ہو گئے۔ جہاں پہلے ان کا گھر ڈھا دیا گیا، وہیں اب ان کے گھروں میں نالیوں کا گندا پانی بھی داخل ہو گیا۔ واضح ہے کہ پہلے ہی شہر میں گندگی کے سبب ڈینگو، ملیریا جیسے مرض عام ہو گئے ہیں، ایسے میں اس نہر پر رہنے والوں کے ساتھ اس طرح کی کارروائی کیا جانا ان کے ساتھ دوہرے مار کے برابر ہے، جس پر محکمہ بلدی کی لاپرواہی ظاہر ہو رہی ہے، جس پر کانگریس قائد ضیاء احمد نے محکمہ بلدی کی اس طرح کی لاپرواہی کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے حکومت سے لاپرواہی برتنے والے ملازمین پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا اور یہاں کے عوام کو امداد فراہم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ حال ہی میں آج سے 5-6 دن قبل جو D54 کینال کو توڑا گیا، یہ بالکل جو ہے سو خیر رویانہ طریقہ ہے میونسپلٹی نظام آباد کا کہ بھائی انٹیمیشن دیا آپ صحیح ہے، کام کرے صحیح ہے، لیکن آپ کو بجٹ میں جب JCB بھیجا گیا، جب ڈیمولیشن کے لیے جو چارجز آتے، ڈیمولیشن کے بعد جو ملبہ گرا اس کو اٹھانے کے لیے، اس کی صاف صفائی کے لیے بھی اس میں اماؤنٹ ایڈجسٹمنٹ میں رہتا۔ میں میونسپلٹی کمشنر صاحب سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، کمشنر صاحب، کہ غریب غربا کو آپ لوگ آپ کا میونسپلٹی کا ڈپارٹمنٹ اور کنٹریکٹر صاحب کیا سمجھ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ توڑے آج پھینک دیے۔ آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ جو پانی ملبہ جمع ہو کے ڈرین کو پورا نالے کو D54 کو جو بند کر دیا، تقریباً پانی پورے گھروں میں گھس گیا اور ایک پوری عوام کو نظام بات کی یہ معلوم ہے کہ D54 کینال پہ جو انکوریجمنٹ تھا وہ انکوریجمنٹ کو توڑے آپ اور بغیر صاف صفائی کرے کے چلے گئے۔ آپ لوگ کیا کر رہے کہ پولیس کو لا کر وہ لوگ کو ڈراتے رہے، بھائی آپ ڈرانا چھوڑو، آپ کا جو کام کر رہے ہیں آپ کرو، لیکن اس کو جو ہے طور طریقہ بھی ہے، اس کا آپ کا ہی انتظام رہتا، آپ لوگوں کا ہی انتظام کرنا ہے صاف صفائی کا اور ڈیمولش کا ملبہ اٹھا کر لے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپنسیشن آپ لوگوں کو دینا ضروری ہے، یہ میری ڈیمانڈ ہے۔ وہ لوگ 20-25 سال سے وہاں انکروچمنٹ پہ قبضے پہ ہیں، ہندوستان کے قانون کے حساب سے یہ ان کا حق بنتا کہ وہ لوگ کو جو ہے سو کمپنسیشن میونسپلٹی جہاں سے جس کا توڑ رہے ان کو کمپنسیشن دینا ضروری ہے اور وہ لوگ کو یہ چانس بھی ہے کہ وہ ہائی کورٹ تک جا سکتے۔ عوام اسلامی طرز سے اپنی زندگی گزارے اور اپنے اخلاق سے اسلام کی خوبیوں سے برادران وطن کو واقف کروائے۔ نندی پیٹ منڈل میں جماعت اسلامی کی جانب سے منعقدہ اجلاس سے علماء کا خطاب۔ آج نندی پیٹ منڈل میں جماعت اسلامی ہند شاخ نندی پیٹ کی جانب سے ایک اجتماع عام ناظم ضلع منظور معین الدین مولانا جاوید جماعت اسلامی نندی پیٹ ناظم شیخ غوث نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خطابات سے عوام کو نماز و اسلامی طرز زندگی سے واقف کروایا اور سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنے اخلاق سے دوسرے برادران وطن کا دل جیتنے کا درس دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جماعت اسلامی ہند کی جانب سے 10 روزہ اسلامی معاشرہ مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت ضلع و منڈل کے مختلف مقامات پر اس طرح کے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ امت مسلمہ کو تو بتایا جا رہا کہ تمہارے مقصد زندگی کیا ہے، مقصدین کیا ہے، کس کے لیے تم دنیا میں آئے، یہ کام کرنے کے لیے امت کے اندر شعور بیدار کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ امت خیر امت یعنی بھلائی اور برائیوں کو مٹانے، نیکی کا حکم دینے کے لیے امت برپا کی گئی ہے۔ آج پورے مسلمانوں کے اندر
इस शऊर को बेदार करने के लिए एक 10 रोज़ा मुहिम मनाई जा रही है, जो हमारे जमात इस्लामी तेलंगाना इस्लामी माशरे के तहत तमाम मुसलमानों को अपना भूला हुआ जो सबक है, जो मकसद ज़िंदगी है, वो याद दिलाया जा रहा। और इस मुल्क के अंदर भी हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हम जो हमारे भाई हैं गैर मुस्लिम, उन तक भी हम अल्लाह के इस पैगाम को पहुँचाने के लिए जद्दोजहद करना। नेशनल स्पोर्ट्स डे का बांसवाड़ा मिनी स्टेडियम में जोश व खरोश के साथ इनेकाद रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को दिए कई मशवरे। मेजर ध्यानचंद की तस्वीर को पेश किया खिराज क़दर। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर पर मिनी स्टेडियम में मुनक़िदा एक तक़रीब में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बाहिसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की तस्वीर को गुलाए क़िदत पेश करते हुए कहा कि नौजवान खिलाड़ी इनसे सबक लेते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। मेजर ध्यानचंद की तर्ज पर बांसवाड़ा के खिलाड़ी भी दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। इसी गर्ज से बांसवाड़ा में मिनी स्टेडियम का क़याम अमल में लाया गया है ताकि खिलाड़ी अपने खेल पर तवज्जो दे और इनकी हर मौके पर मदद के लिए वो इनसे मुलाकात करने का इन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर इन्होंने कौमी, बैनुल-अक़वामी और रियासती सतह पर बेहतरीन मुजाहरा करने वाले मुकामी खिलाड़ियों को तहनीत दी गई। పెద్దలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఈ జాతీయ క్రీడోత్సవ సందర్భంలో వారందరికీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం. భారతదేశానికే ఒక గుర్తింపు తెచ్చి 12 మెడల్స్ను, గోల్డ్ మెడల్స్ను సంపాదించి హాకీలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి అంటే 400 గోల్స్ చేసి దేశ విదేశాలలో భారతదేశంలో కూడా గొప్ప క్రీడాకారులు ఉన్నారని చాటి చెప్పినటువంటి ధ్యానచంద్ గారికి ఈ క్రీడోత్సవ సందర్భంలో వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తా ఉన్నాం. डिचपली मंडल में फिर एक बार चीते का खौफ। पहाड़ पर मौजूद चीते का नौजवानों ने बनाया वीडियो, फिर भी महकमे जंगलात की लापरवाही पर अवाम ने किया गुस्से का इजहार। डिचपली गांव के अखलती इलाकों में फिर एक बार चीते का खौफ फैल गया है। पहाड़ पर गुज़िश्ता कर रहे चीते को मुकामी अवाम नौजवानों ने अपने फोन पर रिकॉर्ड करते हुए महकमे जंगलात के अहदेदारों को चीते की मौजूदगी से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी चीते की जानिब से बकरियों के मंदे पर हमला करते हुए 2 बकरियों को जख्मी करने व एक बकरी को अपना शिकार बनाने के वाक़े पर हर कोई वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी महकमे जंगलात की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न करने पर अवाम ने शदीद गुस्से का इजहार किया। नौ मुंतखब TSCHE चेयरमैन प्रोफेसर आर लिम्बाद्री की रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन व PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी से अलहदा मुलाकात। नौ मुंतखब तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन चेयरमैन प्रोफेसर आर लिम्बाद्री ने निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन व PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी से अलहदा मुलाकात की, जिस पर इनकी जानिब से इनके ओहदे पर फायज होने पर इनको तहनीत पेश की गई और इनका ताल्लुक जिले से होने पर खुशी का इजहार किया और मुस्तकबिल में और भी आला ओहदे पर फायज होने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और रियासती वज़ीर आला KCR के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम करने की नसीहत। शहर निजामाबाद के नौजवान हरकियाती कायद मोहम्मद आबिद के अपने हामियों के हमरा YSRCP में शमूलियत, अवाम की खिदमत व इलाके की तरक्की के लिए किया अज़्म। आज शहर निजामाबाद के इलाके हटोनगर में नौजवान हरकियाती कायद मोहम्मद आबिद की क़यादत में कई नौजवानों ने YSRCP जमात में शमूलियत हासिल की। इस तकरीब में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी YSRCP जिले कन्वीनर त्रिपाठी रेड्डी, कृपा ज्योति, मदन श्रीनिवास ने शिरकत करते हुए पार्टी के झंडे की परचम कुशाई अंजाम दी और YSRCP खंडवे डालते हुए नौजवानों का YSRCP में खैर मकदम किया। इस मौके पर नौजवान कायद मोहम्मद आबिद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि YSR के दौरे हुकूमत में गुरबा व अक़लियतों को जहन में रखते हुए इन्होंने कई स्कीमात रूबे अमल में लाते हुए गुरबा को काफी फायदा पहुंचाया और यही स्कीमात आज भी जारी है, जिसके सबब कई गुरबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तकरीब में मुश्ताक, अब्दुल करीम, अजीम, नुमान, कलीम, अफरोज, मुखिद व दीगर मौजूद थे। आज निजामाबाद अर्बन एरिया में आटो नगर के पास पार्टी प्रेसिडेंट YS शर्मिला मैडम के
आदेश से यहाँ पर एक आटो नगर में क्या है सो झंडा प्रोग्राम क्या है सो यहाँ पे इनखाद अमल में लाया गया है, जिसको मुनक़िद करने के लिए निज़ामाबाद पार्लियामेंट के कन्वीनर साहब तिरुपति रेड्डी साहब और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और को कन्वीनर साहब ज़हीराबाद पार्लियामेंट को कन्वीनर श्रीनिवास सब लोग यहाँ पर हाजिर हैं। और हम लोग निज़ामाबाद के अंदर वाईएस पार्टी का एक बुनियाद लाने के लिए मैडम का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। वाईएसआर साहब के जो कार्यकर्ता थे आज भी तेलंगाना के अंदर बाकी है, जो उन्होंने काम किए थे, जैसा कि आरोग्यश्री, फीस रियम्बर्समेंट 108, ख़ासकर मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन जो आया था वो सिर्फ वाईएसआर साहब की बदौलत थी। और हमें तहे दिल से खुश है कि शर्मिला मैडम वाईएसआर के सार के रूप में फिर वापस वो आए हैं और तेलंगाना की अवाम बहुत खुश है इससे। వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చేసిన పనులలో ముస్లింకు 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిండు, అది అమలు జరిగింది, वो पक्का हो गया। ये भी ये क्या बोला केसीआर 12% देता बोला, वो खत्म। 12% नहीं 5-6% भी नहीं हुआ। వైఎస్ రాజశేఖर दिए सो 4% वही पक्का चल रहा है। अभी 1% ज़्यादा हुआ नहीं हो ना। 12% केसीआर बोले ना दिए, मुस्लिम को दिए, मुस्लिम को नौकरी दिए, किसको भी पढ़ेसो वाला को नौकरी दिए, डबल बेडरूम दिए, डबल बेडरूम नहीं, किसको भी ऐसा पढ़ेसो वाले को भी नौकर नहीं दे रहे। केसीआर खाली रात गया बात करते जाते, बस खत्म, बात का खत्म है। अब ये दलित बंद करे, माइनॉरिटी बंद चालू करते कहते, और ईबीसी ओबीसी सब दलित बंद देते कहते। मैं बोल रहा है लास्ट को तुम्हारा दुकान बंद होता, किसको देते बंद? टीआरएस का दुकान ही बंद होता। खाली बातें में कर रहे, पैसे कम बातें ज़्यादा। कैसा देते? 10 आदमी को 10,000 है तो 10 लाख लेते बोलता, कहाँ से लेते 10 लाख? इसलिए केसीआर गारू उर्दू पढ़ने से दिमाग तेज होता है, नई तहकीक। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। अब तो साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि उर्दू जबान लिखने, पढ़ने और बोलने से न सिर्फ जबान में शाइस्तगी पैदा होती है बल्कि दिमाग में भी रोशन हो जाता है, और ख़ास तौर पर याददाश्त कमज़ोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लखनऊ के सेंटर बराए बायोमेडिकल रिसर्च CBMR ने एक तहकीक में दिलचस्प इंकशाफ किया है कि उर्दू पढ़ने से दिमाग तेज होता है और ये बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में भी मददगार साबित होती है। हाल ही में एक बैनुल-अक़वामी जरीदा में ये रिपोर्ट शाये हुई है। उर्दू को पढ़ने में ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए बताया गया है कि इसे दाएं जानिब से लिखा जाता है। यूं तो अरबी, फारसी और सिंधी जबानें भी दाएं जानिब से लिखी जाती है, लेकिन उर्दू का ये तरह इम्तियाज है कि इसे आसानी से समझ में आने वाली जुबान करार दिया गया है, जिसकी अपनी मिठास है। जिसकी छोटी सी मिसाल ये है कि गैर उर्दू दा तबका भी उर्दू गजलों का शहदाई है। उर्दू गजलों की ही वजह से कई शोरा और गुलकारों ने बैनुल-अक़वामी में शोहरत हासिल की, जिनमें मोहिद्दी हुसैन, जगजीत सिंह, गुलाम अली और पंकज उदास के नाम काबिल जिक्र है। ये बात भी अपनी जगह मुसलिमा है कि जिस तरह अंग्रेज की मादरी जबान अंग्रेजी होती है, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंग्रेजी में कमजोर होते हैं, और बिल्कुल यही बात उर्दू के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन इसकी इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तेलंगाना में आइंदा 5 दिन तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 5 दिनों तक शदीद बारिश और गरज चमक व तेज हवाओं का इंतबाह दिया है। महकमे ने अपनी पेश क़ियासी में कहा कि तेलंगाना रियासत में आइंदा 5 दिन के दौरान हल्की सी औसत बारिश और कुछ मकामात पर शदीद व मूसलाधार बारिश की पेश क़ियासी की है। कहा गया है कि मगरबी वस्ती खलीज बंगाल और साहिल उड़ीसा व शुमाली आंध्र प्रदेश में हवा के दबाव में कमी की सूरत हाल बरकरार है। मशरिकी व दरभा और पड़ोसी मुकामात पर भी हवा के दबाव में कमी है। इसके नतीजे में रियासत के कई अजला में बारिश हो सकती है। कहा गया है कि आदिलाबाद, खम्मम, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल और रूरल के अलावा पेदापल्ली में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जगतियाल, राजन, सिलसिला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलक, कोत्तागुड़म, खम्मम, सिद्दीपेट, हैदराबाद, मलकाजगिरी, मेडचल, महबूबाबाद, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूब नगर में शदीद बारिश हो सकती है। हैदराबाद में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुतल्ला आम तौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की ता औसत बारिश होगी। कुछ मौक़ों पर शदीद बारिश भी हो सकती है। अजीम तरीन दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री के आसपास रहेगा। अक़ल तरीन दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री हो सकता है।
2 माह में कोरोना के ज्यादा केसेस, केरला व महाराष्ट्र मुतासिर, मुल्क में तीसरी लहर का अंदेशा बढ़ गया, इन्फेक्शन और अमवात की तादाद में इजाफा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन की 46,759 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। ये तकरीबन 2 माह में कोरोना के रोजाना केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। गुज़िश्ता रोज ये तादाद 44,658 थी और कोरोना के मरीजों में 4% इजाफा हुआ है। नए केसों के साथ मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद अब बढ़कर 3,26,59,947 हो गई है। मुल्क में जुमला 1.10% एक्टिव केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इस वक्त मुल्क भर में फॉल केसेस की तादाद 3,59,775 है। सेहतयाबी की शरह 97.56% रिकॉर्ड की गई है। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 3,18,52,802 अफराद इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। केरला और महाराष्ट्र में पाए जाने वाले नए कोरोना केसेस से खदशात में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,654 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि केरला में 32,801 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केरला में 179 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 170 अफराद फौत हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 31,374 है। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में इजाफा, एहतियात का मशवरा। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में हालिया अरसे के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना के बाद अब अस्पतालों में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद बढ़ गई है। रियासत का दारुल हुकूमत मुतासरीन की जायद तादाद का मरकज बन गया है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ नामुनासिब माहौल और पानी के जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके नतीजे में हालिया दिनों के दौरान रियासत में डेंगू के मामलात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू के 2,173 मामला दर्ज किए गए। ताहम जारिया मौसम के दौरान अब तक 1,928 डेंगू के मामला दर्ज किए गए। हैदराबाद, मेरचल, रंगारेड्डी और खम्मम में मुतासरीन की तादाद ज्यादा है। हैदराबाद में 650, खम्मम में 240, रंगारेड्डी में 164, मेरचल में 138 मामला दर्ज किए गए हैं। आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, निजामाबाद, निर्मल अजला में भी कोरोना के मामला दर्ज किए जा रहे हैं। घरों में जमा पानी, खराब एयर कूलर्स, पानी के ड्रम्स, टैंक्स, पुराने टायर्स और गमलों के पास में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, जिनकी सफाई पर जोर दिया गया है। अवामी मुकामात पर भी बारिश का पानी जायद जमा होने के नतीजे में भी डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश होती है। स्कूल, सिलास, तामीराती मुकामात, फंक्शन हॉल्स, ओपन प्लाट्स में मच्छरों की अफजाइश होती है। हैदराबाद के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, कच्ची बावली, हाईटेक सिटी जैसे इलाकों में मच्छरों से डेंगू के फैलने के मामलात में इजाफा हो रहा है। डेंगू के साथ साथ दीगर मौसमी अमराज की मामलात में भी हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नजर शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा कि घर और आसपास के माहौल को पाक साफ रखा जाए, गंदे पानी को जमा न होने दे ताकि मच्छरों की अफजाइश न हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और वाटर टैंक वक्फे से साफ करते रहे, क्योंकि डेंगू बुखार की वजह बनने वाले मच्छरों के पानी में ही अफजाइश होती है। खास तौर पर ये मच्छर दिन के वक्त ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छुपे रहते हैं, लिहाजा इन मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए वक्फे से सफाई की जानी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आमतौर पर 3 ta 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 ta 4 दिन से ज्यादा बुखार की शिकायत हो तो मरीज को चाहिए कि वो फौरी तिब्बी मुआयना करवाए। ये भी मशवरा दिया गया कि खाने और पीने की अशिया में साफ सफाई का ख्याल रखें। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर, 4.81 करोड़ पैरासीटामोल गोलियों का इस्तेमाल, रोजाना 5 लाख गोलियां खाई गई। मुख्तलिफ सर्वे में इंकशाफ। मुख्तलिफ सर्वे से पता चला है कि बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाले पैरासीटामोल की गोलियों के इस्तेमाल में कोरोना बहरान के दौरान 2 गुना इजाफा हुआ है। हुकूमत ने कोरोना से मुतालिक अलामतों से अवाम को निजात दिलाने के लिए इस गोलियों के इस्तेमाल को आम किया और कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद में तकसीम किए जाने वाले मेडिकल किट्स में इस गोली को शामिल किया है। सर्वे के अदद शुमार से पता चला है कि रोजाना अवाम ने 5.20 लाख पैरासीटामोल गोलियों का इस्तेमाल किया है। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर जाने के दौरान
मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 माह के दौरान जुमला 481 करोड़ पैरासीटामोल गोलियों को अवाम ने खाया है। इन गोलियों से कोरोना से गैर मुतासिर 32 लाख अवाम का इलाज किया गया। महकमे सेहत की जानिब से पैरासीटामोल गोलियों की खिल्लत को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए और हर 10 दिन में एक मरतबा स्टॉक सरकारी हॉस्पिटल को रवाना किया। इसी दौरान 1.3 लाख सेट्रेजिन गोलियों का भी अवाम ने इस्तेमाल किया। रियासत में औसतन रोजाना 15,249 इन 95 मास्क, 34,221 सर्जिकल मास्क, 59,000 सर्जिकल ग्लव्स और दूसरी तिब्बी आलाजात का इस्तेमाल करने का भी सर्वे में इंकशाफ हुआ है। तेलंगाना और आंध्रा में सितंबर में 7 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। RBI ने मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ के त्योहारों के लिहाज से बैंक्स को तातीलात का ऐलान किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सितंबर में 7 दिन बैंक्स को तातीलात होंगी। आइंदा माह की 5, 12, 19, 26 तारीख को इतवार की छुट्टी है। 11 तारीख को दूसरा हफ्ता है। 25 तारीख को चौथा हफ्ता है, जिसकी वजह से बैंक्स को तातीलात होंगी। इन 6 तातीलात के साथ साथ 10 सितंबर को विनायक चतुर्थी की छुट्टी दी गई है। इसी तरह आइंदा माह की 10, 11, 12 तारीख को एक साथ 3 दिन छुट्टियां होंगी। साइबर क्राइम के मुतासरीन में तेलंगाना नंबर 1। साइबर क्राइम के वाक़यात में मुतासिर होने वाले अफराद में तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में सर फहरिस्त है। मरकजी हुकूमत ने साइबर क्राइम के मुतासरीन के लिए सेंट्रल साइबर क्राइम नंबर 155260 जारी किया है, जिन्हें साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत फराहम की है। 2 माह में तेलंगाना के 2513 मुतासरीन ने मरकजी साइबर क्राइम नंबर पर शिकायत की है। रोजाना औसतन 40 मुतासरीन साइबर क्राइम से लाखों रुपए के नुकसान से 2 चार हो रहे। 2 माह के अरसे में साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना के मुतासरीन से तकरीबन 24 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। साइबराबाद में सबसे ज्यादा 1047 मुतासरीन को साइबर मुजरिमों के हाथों धोखा हुआ है। हैदराबाद और राचाकोंडा के कुल 3,59,358 मुतासरीन ने शिकायत दर्ज कराई है। दीगर रियासतों के 749 मुतासरीन ने साइबर क्राइम नंबर के जरिए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद में मुनाकिदा डिजिटल इंडिया 9th केबल नेट एक्सपो का हुआ आज इख्तिताम। इस एक्सपो में GDPL की जानिब से मुतारफ करदा जदीद टेक्नोलॉजी बनी अवाम की तवज्जो का मरकज। रियासत के कई केबल ऑपरेटर्स ने किया एक्सपो का मुशाहिदा। इस माह की 27 तारीख से हैदराबाद में आगाज होने वाले डिजिटल इंडिया 9th केबल नेट एक्सपो का आज इख्तिताम अमल में लाया गया। इस एक्सपो का मकसद तेलंगाना में टेक्नोलॉजी को आम करना है और इस मकसद के तहत अपने सार्फिन को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए GDPL की जानिब से मुल्क में पहली बार कई जदीद टेक्नोलॉजीज को मुतारफ करवाया गया, जिसके जरिए एक आम टीवी को भी स्मार्ट टीवी में तब्दील किया जा सकता है। इस एक्सपो में रियासत के मुख्तलिफ ऑपरेटर्स ने शिरकत करते हुए GDPL की जानिब से फराहम करदा जदीद टेक्नोलॉजीज की तारीफ की। इसी तरह आज डिस्ट्रिक्ट केबल ऑपरेटर एसोसिएशन सदर रामा रेड्डी, मोतमिद, मोहम्मद अजीज, राजेंद्र रेड्डी, सैयद रफी, गणेश, मोहम्मद शुकुर, नागराज, नितिन, अरविंद, सतीश ने हैदराबाद पहुंचते हुए एक्सपो का मुशाहिदा किया। इस मौके पर GDPL वाइस प्रेसिडेंट मनोज दुबे ने इन्हें GDPL की जानिब से मुतारफ करदा जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारफ करवाया और इससे एक आम टीवी में भी Amazon, आहा, OTT जैसी गेमिंग एप्लीकेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम को अभी बेहतरीन खिदमात फराहम की जा सकती है। టెక్నాలజీతో ఒక హైబ్రిడ్ బాక్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము। దీనివల్ల ప్రేక్షకులకి ఒకే బాక్స్తో ఒకే రిమోట్తో టీవీలో అన్ని ఛానల్స్ మరియు 5,000 యాప్స్ లైక్ Z5, హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇలాంటి ఛానల్స్, ఇలాంటి యాప్స్ అన్ని చూడొచ్చు. ప్లస్ అదే రిమోట్తో టీవీ ఛానల్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఈరోజు ఒక ప్రేక్షకుడి ఇంట్లో ఒక టీవీ, ఒక రిమోట్, ఒక 3 సెట్టాప్ బాక్సులు, ఒక 3 ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్, రకరకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సో ఒక సింగిల్ బాక్స్తో, ఒక సింగిల్ రిమోట్తో ఒక టీవీని స్మార్ట్ టీవీగా కన్వర్ట్ చేసి ఆ స్మార్ట్ టీవీలో కేబుల్ టీవీ ఛానల్స్ రావడము ప్లస్ అన్ని OTT యాప్స్ రావడము ఈ బాక్స్ ఒక ప్రత్యేకత। आर्मू में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया।
हॉस्पिटल की जानिब से इतवार को मुफ्त मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। हेल्थ कैंप में 100 से ज्यादा अफराद की स्कैनिंग की गई, जिनमें जनरल फिजिशियन, डायबिटीज और दीगर तशखीस की गई और मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। समाजी कारकुन मोहम्मद साजिद और जाफर एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि ये हमारा पहला मुफ्त कैंप था। हमारा ख्याल इन लोगों तक पहुँचना है जो अद्वियात बर्दाश्त नहीं कर सकते। 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिन्हें तिब्बी इलाज की जरूरत है लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। प्रोग्राम और सफाई मुहिम मजीद किए कि आलमी इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप और अद्वियात की तकसीम को आगाही प्रोग्राम और सफाई मुहिम के साथ जारी रखा जाएगा। इसको बुखार निकाल गया और 20 पेशेंट मामूली बता लेके आया और 30 पेशेंट्स में 20 पेशेंट्स को नॉर्मल सीजनल फीवर है और सर्दी बुखार से आया, उसको गोलियां लिख के दिए गए और 10 पेशेंट्स को डेंगू जैसा थोड़ा सिम्टम्स है, उसके लिए टेस्ट को भेजा है लैब को और लैब टेस्ट आने वाले हैं। वो आने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करना वो ट्रीटमेंट हमें देख लेते। ये कैंप को म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन साहब और 14th वार्ड काउंसलर इम्तियाज़ साहब और फर्स्ट वार्ड काउंसलर रहमान अली साहब और सैयद जाफ़र अली खान उसका फ्रेंड्स मिलके ये कैंप लगा दिए जा रहे हैं और हमें आके इधर सर्व करना थोड़ा अच्छा लग रहा है। आर्मूर में लाइफ हॉस्पिटल आपको तेलंगाना के पहले हुजूमी तशद्दुद का शिकार होने वाले अफराद खानदान की मदद करने वाले तंजीमों से मोहम्मद अजीम कुरैशी स्लाटर हाउस कॉन्ट्रैक्टर ने किया। और हमारे तेलंगाना के सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश मोइज़ बाबू चौधरी, मंसूर चौधरी और जितने भी हमारे हैदराबाद के ज़िम्मेदार हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं निज़ामाबाद शहर से कि आप लोगों ने अपनी एक बड़ी ज़िम्मेदारी समझते हुए जो है आप एक बड़ी रकम उनके हवाले किए। मरहूम रज्जब अली कुरैशी के अहलिया को कुछ कम 3.25 लाख रुपये आपने दिए और उनके वालदा को 50,000 रुपये दिए और ज़ख्मी अजीज़ कुरैशी के इलाज के साथ इलाज के लिए आपने 50,000 की रकम दिए। बड़ों की कहावत है कि अल्लाह वालों के से जो काम शुरू होता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। जमीयतुल उलमा की पहली कोशिश रही जो निज़ामाबाद प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक करने के बाद पहले जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के मेंबर और ज़िम्मेदारों का जमीयतुल उलमा का मैं तहे दिल से कुरैश बिरादरी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पहले इमदाद दी थी, इमदाद दे के उन्हें हिम्मत अफजाई दी थी, उनको बहुत सी ताकत दे के आपने हिम्मत अफजाई दे के इस केस को आगे बढ़ाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट इसकी सुनवाई चालू कर दिया है और मैं हमारे हैदराबाद के भी जितने ज़िम्मेदारान हैं तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने एक वीरान घर को रोशनी दी और उन बेसहारों को सहारा दिया। आप लोगों ने वाक़ई हाईकमान का जो मर्तबा होता है आपने पूरा अदा करके बताया। इस लिहाज से निज़ामाबाद जमीयतुल कुरैश के जानिब से मैं जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, उलमा इकराम और जो है हैदराबाद के जमीयतुल कुरैश के ज़िम्मेदारान जनाब मंसूर चौधरी, खुसूसन हमारे NRI जलालुद्दीन कुरैशी साहब और हमारे सदर तेलंगाना मोइज़ बाबू चौधरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना एक बड़ा मुकाम कायम रखा। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके सेहत दे, आपके जो है सो सोच को और आला से आला करे। निज़ामाबाद जमीयतुल कुरैश की जानिब से मैं एक स्लाटर हाउस हूँ और कमेटी का मेंबर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद जमीयतुल कुरैश की जानिब से मैं हैदराबाद के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नेशनल स्पोर्ट्स डे का बांसवाड़ा मिनी स्टेडियम में जोश और खरोश के साथ इनेकाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को दिए कई मशवरे। वो मेजर ध्यानचंद की तस्वीर को पेश किया खिराज अकीदत। टीआरएस दौरे हुकूमत तरक्की का दौर, शहर को खुशनुमा बनाने व अवाम के लिए रोजगार की मौके फराहम करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम शहर में जारी। टीआरएस का अहम कारनामा अर्बन रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता। इन्होंने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा।
मरकजी हुकूमत की जालिमाना कानून हो या कोरोना वबा का खौफनाक दौर, हर मौके पर अव्वाम के दरमियान में रहते हुए अव्वाम का साथ देने वाली रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की यौम पैदाइश पर एक खुसूसी रिपोर्ट। नौ मुंतखब TSCHE चेयरमैन प्रोफेसर आर लिम्बाद्री की रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन व PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी से अलहदा मुलाकात। डिचपल्ली मंडल में फिर एक बार चीते का खौफ, पहाड़ पर मौजूद चीते का नौजवानों ने बनाया वीडियो, फिर भी महकमे जंगलात की लापरवाही पर अव्वाम ने किया गुस्से का इजहार। हैदराबाद में मुनक्किदा डिजिटल इंडिया 9th केबल नेट एक्सपो का हुआ आज इख्तिताम। इस एक्सपो में GDPL की जानिब से मुतारफ करदा जदीद टेक्नोलॉजीज बनी अव्वाम की तवज्जो का मरकज। रियासत के कई केबल ऑपरेटर्स ने किया एक्सपो का मुशाहिदा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।